ہر قسم کا سامان ان کے پاس موجود تھا، اور وہ A401 جو قومی اسمبلی کے ممبر صلاح الدین ایوبی صاحب کا گھر ہے، اس کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے بغیر کسی وارننگ کے۔ اسلام آباد کی پوری انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، پریزن وین نیچے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ داخل ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے زد و کوب کیا صلاح الدین ایوبی صاحب کو، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو، اور MNA سعد رفیق صاحب کو، اور MNA جمال الدین صاحب کو، اور اس کے بعد 5 اراکین اسمبلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، حبس بیجا میں رکھا، اور صلاح الدین ایوبی صاحب اور جمال الدین صاحب کو یہاں سے اغوا کر کے لے گئے، مختلف سڑکوں پر پھیرتے رہے، اور اس کے بعد آپارا تھانہ لے گئے۔ حالانکہ یہ سیکریٹریٹ تھانہ یہ سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اتنی گر چکی ہے، اتنی پریشان ہے، اتنی خوفزدہ ہے اپنا اقتدار جانے سے کہ آج وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کو تیار ہے؟ کیا آج کوئی جمہوری قدریں نہیں رہی، کوئی پارلیمان کی قدر نہیں رہی، کوئی اخلاقی قدریں نہیں رہیں؟ اسپیکر آج تک خاموش ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ہمارا اسپیکر ایک ایسا شخص ہے جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ پارلیمان کی عزت کی پرواہ ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبران کی پرواہ ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ لاج میں ایک گیٹ ہے جسے ہر شخص اندر جاتا ہے، وہاں کم از کم 20 پولیس کے اہلکار ہر وقت موجود ہوتے ہیں، 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب سے کہ کیا آپ نے اس پولیس کو اجازت دی تھی کہ اس طرح وہ اندر داخل ہوں اور MNAs کو حبس بیجا میں رکھیں، اغوا کریں، مار پیٹ کریں؟ کیا یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ اور اس وقت جبکہ ملک میں ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر، آج تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج تو یہ نظر آنا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، اس ملک میں کوئی پارلیمانی روایات ہیں۔ اس موقع پر جب ہمارا وزیر اعظم کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے، وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اسپیکر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیوٹرل ہونے کو ثابت کرے اور اس بات کا پورا یقین کرے کہ کسی اس شخص کو جو عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ ہو، کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر کو کوئی ایسی شکایت نہ ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک میں اسپیکر جانبدار نظر آئے۔ اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے، اسمبلی کے تقدس کا، ممبران کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر یہ قدریں نہیں رہیں گی تو جمہوریت نہیں چلتی۔ تو آج اسپیکر صرف ایک جواب دے دے کہ کیا یہ پولیس جو صلاح الدین ایوبی صاحب کے گھر پر حملہ آور ہوئی، ان کی مرضی سے یہاں آئی تھی یا ان کی مرضی کے بغیر آئی تھی؟ ہم اس سوال کے جواب کا انتظار کریں گے۔
اب हुकूमत ने अदम एतमाद का मुकाबला करना है तो पार्लियामान के अंदर करे, पार्लियामान से बाहर करना है तो फिर उसके नतीजे की जिम्मेदारी भी इमरान खान और उसके वजीरों और इस हुकूमत पर होगी, क्योंकि अवाम आज इस हुकूमत को माफ करने को तैयार नहीं है। अवाम आज ये तमाशे देखने को तैयार नहीं है। अदम एतमाद तहरीक जमा हो चुकी है। तुम में हिम्मत है तो कल सुबह इजलास बुलाओ और जो आइन का तरीका है उस पर असेंबली में वोटिंग कराओ। यहां बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले थे, बड़े बड़े दावे करने वाले थे कि अदम एतमाद तहरीक लाएं। अदम एतमाद तहरीक आ चुकी है। हिम्मत है कल सुबह इजलास बुलाएं। हम हफ्ते के दिन भी तैयार हैं, इतवार के दिन भी तैयार हैं, हर रोज तैयार हैं। आपको लाएं ताकि इस मुल्क के अवाम जो है वो आपको घर वापस भेजें। तो मैं हुकूमती एहलकारों को नए मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूं। आप हुकूमत के एहलकार हैं, इमरान खान और उसके वजीरों के जाती मुलाजिम नहीं हैं। आज जो गैर कानूनी कदम आप करेंगे कल इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अदम एतमाद की तहरीक है मुल्क के अंदर, इसमें मुदाखलत मत करें, हमें नाम लेने पर मजबूर मत करें। और ये याद रखें कि गैर कानूनी काम का हिसाब आपको देना होगा। ये वजीर जो आपको अहकामात दे रहे हैं, जो वजीर आपको अहकामात गैर कानूनी अहकामात देते हैं, इनकी पाबंदी करना, इनकी पाबंदी ना करना आप पर लाजिम है। लॉफुल और अनलॉफुल ऑर्डर में फर्क जाने। मैं आईजी पुलिस इस्लामाबाद की इंतजामिया, सेक्रेटरी इंटीरियर, इन सबको बताना चाहता हूं आज यहां कोई गैर कानूनी कदम हुआ, कल की बात भी डॉक्यूमेंटेड है। कोई गैर कानूनी कदम हुआ, जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि ना ये वजीर आपके साथ खड़े होंगे, ना ये प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा होगा। आज गैर कानूनी अहकामात वो जारी कर रहे हैं, भुगतने आपको पड़ेंगे। मैं वो बातें जो मैंने पहले भी कही थी फिर दोहराना चाहता हूं। ये नैब का नोटिस है। ये मेरे साथ नेहरा साहब, अजहर कयूम नेहरा साहब गुजरांवाला से MNA है, ये खड़े हैं। नेहरा साहब ने कभी भी जिंदगी में कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा। MNA इलेक्ट हुए, कभी वजीर मुशीर किसी किस्म का ओहदा नहीं रखा। 2 नैब की इंक्वायरी भुगत चुके हैं। अब ये अदम एतमाद शुरू हुआ है तो एक और नैब की इंक्वायरी का नोटिस आ गया है। तो मैं चेयरमैन नैब को बताना चाहता हूं कि आप भी इन कामों में मुलव्वस मत हो, क्योंकि कल आपको जवाब देना पड़ेगा। अदम एतमाद एक आईनी अमल है। इस आईनी अमल को रोकने में जो शख्स भी मुदाखलत करेगा कल उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बात याद रखें। चाहे आप स्पीकर हो, चाहे आप चेयरमैन नैब हो, आप सेक्रेटरी इंटीरियर हो, आप आईजी पुलिस इस्लामाबाद हो, आप कमिश्नर इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, AC इस्लामाबाद, कोई सरकारी ओहदा आपके पास हो, ये बात याद रखें। गैर कानूनी अमल के लिए आप जवाबदेह होंगे। यहां कमीशन बनेंगे, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बातें मत भूलें। कानून मत तोड़ें, पार्लियामेंट पर हमलावर मत हों। ये बड़ा संगीन जुर्म है, इसको लाइटली मत लें। मेरी आपसे गुजारिश है, पार्लियामेंट पर हमलावर होने से बड़ा जुर्म हमारे आइन के अंदर कोई नहीं है। पार्लियामान के मेंबर को अवाम की नुमाइंदगी से रोकने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। आइन पढ़ ले,
कानून देख लें ताकि कल आपको तकलीफ ना हो। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूं, अदम एतमाद की जगह ये पार्लियामान है, सड़कों पर नहीं है, पार्लियामान पर हमलावर होकर नहीं है। आपने ये काम भी आजमाना है तो पाकिस्तान के अवाम आपका यहां भी मुकाबला करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जमहूरी रवायात की तकाजा है, पार्लिमानी कदरों का तकाजा है, आईन का तकाजा है कि अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामान के अंदर आईन के मुताबिक होनी चाहिए। कल का हमला सिर्फ एक या चंद कौमी असम्बली के मेंबरान पर हमला नहीं था, ये अदम एतमाद की तहरीक पर हमला था, ये पाकिस्तान के आईन पर हमला था और इसकी जवाबदेही होगी। स्पीकर साहब को भी मैं बता दूं, स्पीकर को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है आईन तोड़ने से। आप ये गैर आईनी अमल करेंगे, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बातें सोच लें। कोई सवाल जवाब? एक सवाल का जवाब दे दें कि जो स्पीकर ने कहा, तो क्या स्पीकर आपने तहरीक इस्तेकाक भी रात में पेश हुई है, तो स्पीकर ने कोई इसका लोगों से रब्ता किया? हम इंतजार कर रहे हैं स्पीकर एक सवाल का जवाब दे दे। पुलिस उसकी मर्जी से आई है, उसकी मर्जी के बगैर आई है। सर शाहिद साहब, स्पीकर साहब से तो आप पुलिस की मुदाखलत का जवाब मांग रहे हैं। जब अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान थे वो लाजिज में आए हैं, कोई अंसारुल इस्लाम का यहाँ पर वर्कर आए हैं, पुलिस की इजाजत से लेकर अपने एमएनए से मिलने आए हैं। कोई पुलिस, कोई शख्स मुझे मेरे वर्कर से रोकने से नहीं रोक सकता। कोई असला था किसी के पास? यहां दंदनाते फिरते हैं लोग असले लेकर, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोई शख्स अपने एमएनए से मिलने आए, चाय पीने आए, आप उसके घर पर हमला करेंगे? ये किसने इख्तियार दिया आपको? क्या स्पीकर एक टेलीफोन नहीं कर सकता था सलाउद्दीन अय्यूबी साहब को? क्या कोई यहां से जाके एहलकार पूछ नहीं सकता था? जिनकी इजाजत से वो सारे लोग अंदर आए थे, जिनकी तादाद सिर्फ 7 थी, 7 आदमी अपने एमएनए के घर चाय पीने आए, तो ये दहशतगर्दी होती है जनाब? 5 घंटे उन्होंने मुज़ाकरात किसके साथ किए? तो कहते हैं 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए। झूठ होता है। किससे मुज़ाकरात किए? घर जाके तोड़ा क्यों है? मुज़ाकरात किस बात के? मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे दोस्त चाय पी रहे हैं मेरे साथ, आप मुझसे किस बात की मुज़ाकरात कर रहे हैं? किसने? स्पीकर जवाबदेह है। स्पीकर ये बताए कि उसकी मर्जी से लोग अंदर आए, उसकी मर्जी के बगैर आए। चैलेंज करता है कि आप बंदे पूरे करें, हुकूमत के पास बहुत ऑप्शन होते हैं अपने बंदे गायब करने के लिए। आपके पास प्लान नहीं किया बंदे गायब कर लेना यार, ले बंदे ये असेंबली के इजलास से बुलाए इजलास, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाहिद साहब, आपने ये कहा कि कल का जो हमला है वो पार्लियामान पे हमला है, लेकिन कल तो लाजिज पे हमला हुआ है। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ था, नून की हुकूमत थी। कोई उसूल क्यों तय नहीं किया गया उस वक्त? क्यों उन लोगों को? कौन से हमले की बात कर रहे हैं? मैं कल के हमले की बात कर रहा हूँ। ये पार्लियामान का हिस्सा है, इस पर हमला हुआ है। अगर माजी में कुछ हुआ है उसका कमीशन बनाकर सजा दी जाए। सर, डी चौक पे उन्होंने कहा है कि हम जलसा करेंगे, इमरान खान ने कहा है, जिस दिन ये तहरीक इस्तेमाद आई। जी, तो क्या मतलब है? आप सड़कों पे अदम एतमाद की तहरीक का फैसला करना चाहते हैं? मेरी बात 100 जलसे करें, अदम एतमाद की तहरीक में रुकावट डाली, आपको जवाब इस मुल्क के अवाम देंगे। भाई साहब, ये बताइए, भाई साहब सवाल पूरा नहीं हुआ था। जहाँ तक बात मैंने की थी कि जब 2014 में इसी पार्लियामान पे हमला हुआ था, उसके बाद कोई उसूल क्यों तय नहीं किया गया? इसके साथ ये बताइएगा कि इस तमाम सिनेरियो में आप नहीं समझते कि मामलात जो हैं वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं और निज़ाम लिपेट दिया जाएगा? तो इससे क्या जमहूरियत? जो 2014 में हमला हुआ था और कल हमला हुआ है, हमला करने वाले एक ही हैं, ये वादा भूल जाते हैं। भाई साहब, ये बताइए, तो पार्लियामान अगर ये मुल्क लपेटा जाता है, यहाँ पर किसी को हक नहीं है कि जमहूरियत को तोड़े। सर, कल के बाद लेकिन जब हुकूमत खुद हमलावर हो पार्लियामान पर, कौमी असेंबली के मेंबरों पर, जो धमकियां दे, जिसके वज़रा धमकियां दे, जो यहाँ पर जलसों की धमकियां दे, 100 जलसे करें, पार्लियामान इसके अंदर जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन
जी नाज़रीन, नून लीग अखबार शाद काका नवासी इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। संदन चवण आहे त असेंबली जे 5 मेंबरनि खे हिक कमरे में बंदि कयो पियो। पार्लियामेंट लॉजिस में पुलिस वटि हर क़िस्म जा हथियार हुआ। ॼण दहशतगर्दनि जे ठिकाणे ते कार्रवाई थींदी हुजे। शाद काका नवासी चयो त पुलिस एहलकारनि सलाउद्दीन अयूबी ऐं कामरान मुर्तज़ा ते तशद्दुद कयो। शाद काका नवासी चयो त स्पीकर खे पंहिंजी ऐं पार्लियामेंट जी इज़त जी परवाह नाहे।